Hello guys, so the topic for this video would be cerebellum, and in this video we'll be talking about the classification of cerebellum, the structure of cerebellum, the cerebral cortex, the three layers of cerebral cortex, the deep cerebellar nuclei, and the afferents and efferents. Most importantly, we'll be talking about the different cerebellar peduncles and the comparator function of cerebellum. So in my video on basal ganglia, I said that I'll be making a video on the comparator function or the dentato-thalamic tract of cerebellum. So in this video, I'll be covering that aspect. Okay, so now let's get started. I've already drawn the diagram of cerebellum. Now let us understand it. Cerebellum is having two hemispheres. ठीक है, small brain कहते हैं, two hemispheres हैं, और जो midline structure है, this midline structure is called as the vermis. ठीक है, this entire midline structure is called as the vermis of the cerebellum. अब vermis के further बहुत सारे parts हैं जिसमें मैंने I have not made labeled all the parts here because they're not necessary. मैं still उनके नाम mention करूँगी. So this part is called as the lingula. This part is called as the lingula. I am repeating that I am talking about the parts of the vermis. Lingula, फिर होता है central lobule, फिर होता है culmen, फिर होता है यहाँ पर declive, फिर folium, फिर tuber, फिर pyramid, uvula, then nodule. तो ये सारे parts मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, but ये ज़्यादा important है नहीं. ठीक है, so हम बात कर रहे हैं vermis की. vermis का सबसे पहला part है lingula, जो important है याद करना, followed by the central lobule, then is the culmen, and okay, I'll discuss them later on. उसके बाद declive, then folium, then tuber, then pyramid, another important one to remember, and then another one is the uvula, followed by nodule. ठीक है, हमें चार याद करने हैं इनमें से. क्यों चार बताती हूँ. Okay, remember this one is the label, this is the pyramid, and after that is the uvula. So in labeling I'm using different colors, that is because it is having a reason. Okay, so also you also use different color, and this part there, this is the nodule. अब याद रखना है लिंगुला, मैंने एक गलती कर दी, नोड्यूल और लिंगुला का कलर सेम करो, यूज सेम कलर फॉर नोड्यूल एंड लिंगुला. So this one, this is the nodule. Okay, now central lobule and culmen के आगे लिखो, this is a part of anterior lobe of cerebellum. Declive, folium, tuber, pyramid, and uvula, these are the part of posterior lobe of cerebellum. Nodule is part of floccunodular lobe. Lingula is also part of floccunodular lobe. मतलब lingula functionally जो evolutionary है उसका part है, but location wise different है. ठीक है, अब इसे और simplify करते हैं. So मैं यहाँ पर देखो, ये हेमिस्फीयर, ये सेरिबेलम है. सेरिबेलम के अंदर सबसे पहले दिस फिशर आउट हियर, लुक एट दिस फिशर इज द प्राइमरी फिशर. व्हिच इज दिस फिशर? दिस इज द प्राइमरी फिशर. यहाँ लिख लो, दिस इज द प्राइमरी फिशर, ये वाला. ठीक है, इसके अलावा एक और फिशर होता है, और वो फिशर कौन सा होता है? सो यहाँ पर कहीं होगा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल फिशर. दिस इज द हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर. इनका यूज क्या है आई टेल. एंड फाइनली दिस आउट हियर, ये वाला जो है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस वन, दिस इज द पोस्टीरोलेटरल फिशर. दिस इज द पोस्टीरोलेटरल फिशर. आई होप इतना क्लियर हो गया. अब इनका एडवांटेज देखो, इन मतलब हमें पढ़ा क्यों है. प्राइमरी फिशर जो है, ये सेरिबेलम को डिवाइड कर रहा है एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब.
पूरा ये पोस्टीरियर लोब है और ये पार्ट क्या है, एंटीरियर लोब. एंटीरियर लोब मैं हाईलाइट कर रही हूँ. प्लीज टेक केयर. इट इज द प्राइमरी फिजर विच इज डिवाइडिंग द cerebellum into anterior and the posterior lobe. So this out here I have highlighted with red. This is the anterior lobe of cerebellum. और anterior lobe में क्या आ रहे थे, central lobule and culmen. ठीक है. प्राइमरी फिजर के पीछे वाला जो भी है दैट बिलोंग्स टू डेफिनेटली देन पोस्टीरियर लोब. ठीक है, पोस्टीरियर लोब. अब मैंने एक हॉरिजॉन्टल फिजर मार्क किया. और हॉरिजॉन्टल फिजर मार्क करने का रीजन, हॉरिजॉन्टल फिजर के ऊपर जितना भी है, आई एम नाउ मार्किंग दिस. ओके, हॉरिजॉन्टल फिजर के ऊपर जितना भी है, रिमेंबर दिस वन, दिस बिलोंग्स टू सुपीरियर सर्फेस ऑफ सेरिबेलम. एंड हॉरिजॉन्टल फिजर के नीचे जितना भी है, दिस बिलोंग्स टू इंफीरियर सेरिबेलम, इंफीरियर पार्ट ऑफ सेरिबेलम. तो ये मेरा पर्पस क्या था हॉरिजॉन्टल लोब का, इट डिवाइड्स इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट. ठीक है. और प्राइमरी फिजर का फंक्शन क्या है, डिवाइड्स इनटू एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब. एक बार ये समझ आ जाए, देन वील गो ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सेरिबेलम. सो अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेरिबेलम पे. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. कलर इरेज हो जाए बस. सो या अब 3 पार्ट्स में हम क्लासिफिकेशन करेंगे. ठीक है. वन इज आर्की सेरिबेलम, देन इज पेलियो सेरिबेलम एंड देन इज नियो सेरिबेलम. आर्की सेरिबेलम जो सबसे पहले आया था. यस, अब आते हैं फाइनली. सो मैं यहाँ पर साइड पे लिख रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सेरिबेलम. क्लासिफिकेशन. सो हमें 3 पार्ट्स में करना है. फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द आर्की सेरिबेलम. अच्छा, आई एम नॉट, मैंने सिर्फ वर्मिस के पार्ट्स बताए हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं साथ में जो वो हैं लोब्स हैं, मतलब लोब्स के अंदर भी पार्ट्स होते हैं, बट आई एम नॉट कवरिंग दैट बिकॉज दैट यू कैन सी फ्रॉम द बुक. और बहुत ईजी वे लर्न करने की मेरी खास जरूरत भी नहीं है. सो हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं. आर्की सेरिबेलम, नोट दिस इज एज द नेम सजेस्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट पार्ट. और इसमें इंक्लूडेड कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे, सो मैं डार्क ग्रीन से ही हाईलाइट कर रही हूँ. लिंगुला, फ्लोक्यूनोड्यूलर लोब, ये पूरी क्या है, इंक्लूडिंग द नोड्यूल. सो इसमें क्या क्या पार्ट्स आएंगे, फ्लोक्यूनोड्यूलर लोब प्लस लिंगुला. सो यू कैन राइट आर्की सेरिबेलम दैट इज गोइंग टू इंक्लूड द लिंगुला पोर्शन, लिंगुला प्लस द फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब. ये दोनों स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड है. ठीक है. और आर्की सेरिबेलम का इसे और क्या कहेंगे, ये देखो, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टोन एंड पोस्चर. और बेसिकली आई कैन से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सियल स्टेबिलिटी, क्योंकि एक्सियल स्टेबिलिटी के लिए एक्सटेंसर टोन्स इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसे वेस्टिबुलर सेरिबेलम भी कहते हैं. वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट मैंने बताया था कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंसर टोन, राइट. सो आर्की सेरिबेलम क्योंकि एक्सियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है, पोस्चर एंड टोन मेंटेन करती है, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम. वेस्टिब्यूलोसेरिबेलम. ओके. एंड इसका फंक्शन भी रख लो, दिस इज फॉर एक्सियल स्टेबिलिटी, एक्सियल स्टेबिलिटी, और यू कैन से दिस इज फॉर मेंटेनिंग द टोन एंड पोस्चर. ठीक है. अब आते हैं सेकंड पे. सो आई एम इरेजिंग दिस, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन इवन राइट इट डाउन, वट एवर यू विश टू डू. मैं इरेज कर रही हूँ. हमने फर्स्ट देख लिया फ्लोक्यूनोड्यूलर लोब प्लस लिंगुला पोर्शन आर्की सेरिबेलम में इंक्लूड होता है. नाउ विल सी अबाउट द पेलियो सेरिबेलम. तो पेलियो सेरिबेलम क्या है, इंटरमीडिएट है इवोल्यूशन के हिसाब से. सो रेड कलर में यूज कर रही हूँ. सेकंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पेलियो सेरिबेलम. सो दिस इज नेक्स्ट टू अपीयर. सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाइनोसेरिबेलम. स्पाइनोसेरिबेलम. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज स्पाइनोसेरिबेलम. क्यों, क्योंकि एफरेंट स्पाइनल कॉर्ड से रिसीव करता है. एक चीज नोट करो, सेरिबेलम इफरेंट्स स्पाइनल कॉर्ड को नहीं देता.
सेरिबेलम इफरेंट्स सेरिब्रम को देता है, मतलब सेरिबेलम से जो डायरेक्टली पाथवे जाएंगे वो स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाएंगे, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से आ सकते हैं। तो पेलियो सेरिबेलम वो वाला पार्ट है जहां से स्पाइनल कॉर्ड से आएंगे एफरेंट्स, एंड दिस इज कॉल्ड स्पाइनो सेरिबेलम। अब पहले देखते हैं व्हाट ऑल आर इंक्लूडेड अंडर पेलियो सेरिबेलम। सो एंटायर पोस्टीरियर लोब एक्सेप्ट पिरामिड एंड यूवुला। सो प्राइमरी फिशर के पीछे था, मैंने कहा था पोस्टीरियर लोब, एंटायर पोस्टीरियर लोब, so I'm highlighting it, entire posterior lobe except pyramid and uvula. Okay, so please write down entire posterior lobe, posterior lobe minus pyramid and uvula. Now we come on to the function. तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हमने एक्सियल स्टेबिलिटी के लिए देख लिया, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपेंडिकुलर स्टेबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं फॉर द क्रूड मूवमेंट्स ऑफ लिम्स। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपेंडिकुलर स्टेबिलिटी या फिर फॉर क्रूड मूवमेंट्स ऑफ लिम्स। ठीक है, now we come on to the neocerebellum. So अब मैं इरेज कर रही हूं neocerebellum, इसे cerebrocerebellum भी कहते हैं और सबसे इवॉल्व पार्ट है, एंड इवन यू कैन से मैंने कुछ गड़बड़ की है, आई एम रियली सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। मैंने बोला कि पोस्टीरियर लोब एक्सक्लूडिंग पिरामिड एंड uvula, दीज आर द पार्ट ऑफ पेलियोसेरेबेलम, प्लीज इरेज दैट एंड राइट that anterior lobe plus pyramid and uvula, these are the part of paliocerebellum, and posterior lobe excluding the pyramid and uvula, these are the part of neocerebellum. मैं फिर से clarify कर रही हूँ, I'm really sorry, ऐसी गड़बड़ पता नहीं कैसे होगी बट हो गई। ये रेड वाला पोर्शन जो है मार्क किया है मैंने, दिस इज नियोसेरिबेलम जो कि अब मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। और जो एक्सक्लूडिंग वाला पोर्शन है यानी एंटीरियर लोब प्लस पिरामिड एंड यूवुला, दीज आर द पार्ट ऑफ पेलियोसेरिबेलम। बाकी सब सही था, ये गलत बता दिया था, दिस इज द पार्ट ऑफ पेलियोसेरिबेलम, प्लीज करेक्ट इट। ओके, अब आते हैं नियोसेरिबेलम पे। नियोसेरिबेलम दिस इंक्लूड्स पोस्टीरियर लोब एक्सक्लूडिंग पिरामिड यूवुला, करेक्ट हो गया वो। ऑल्सो कॉल्ड एज सेरिब्रोसेरिबेलम, ऑल्सो कॉल्ड एज सेरिब्रोसेरिबेलम, और लिख लो पोस्टीरियर लोब माइनस पिरामिड एंड यूवुला, पहले वाले में प्लीज करेक्ट कर लेना। और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, स्मूथ वॉलेंट्री मूवमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, द कंपैरेटर फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ voluntary movement, and write down the comparator function of cerebellum। ये होता क्या है, इसका पाथवे क्या होता है, अभी हम डिटेल में सब क्लियर करेंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम आते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। So write down this cerebellar cortex। देखो जो हमारा नियो कॉर्टेक्स होता है सेरिब्रम के अंदर, उसके अंदर 6 लेयर्स होती हैं, ठीक है, लेकिन सेरिबेलम के अंदर देयर आर 3 लेयर्स। कितने लेयर्स होंगी? 3 लेयर होंगी। तो पहले मैं एक डायग्राम के लिए और 3 layers. Now how to remember those layers? So I am having a mnemonic which says my personal garden, my personal garden. So outermost layer, that is the molecular layer. Write down, that is the molecular layer. P stands for the Purkinje layer, and G stands for the granular layer.
ग्रैन्युलर लेयर। अब याद रखना है सेरिबेलम का कॉर्टेक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ग्रे मैटर ऑफ सेरिबेलम है, ठीक है। तो इसके आगे क्या होगा, व्हाइट मैटर ऑफ सेरिबेलम होगा। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसके अंदर हमारे पास 5 न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। मैं एक बार एन्यूमरेट कर देती हूँ, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टीलेट सेल्स, बास्केट सेल्स, पुर्किंजी सेल्स, ग्रैन्युलर सेल्स एंड गोल्गी सेल्स। फिर व्हाइट मैटर ऑफ सेरिबेलम के अंदर हमने पढ़ना है जो डीप न्यूक्लियाई, डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई हैं, जो कि 4 होते हैं, फेस्टिजियल, डेंटेट, ग्लोबस एंड एम्बोलिफॉर्म। तो वो क्या आते हैं, व्हाइट मैटर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करें सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बता चुकी हूँ इसकी 3 लेयर्स होती हैं, मैंने अभी कई सेल्स के नाम लिए, तो उन सेल्स को बनाते हैं। फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट सेल इज द पुर्किंजी सेल। पुर्किंजी सेल डेफिनेटली पुर्किंजी लेयर में होगा, बहुत बड़ा सा होता है पुर्किंजी सेल। और ये हो गए इसके डेंड्राइट्स, और ये हो गया इसका इफरेंट्स। रिमेंबर, नोट, Purkinje cell is the only cell of the cerebellar cortex which is giving its efferents, ठीक है। cerebellar cortex में only cell जिसके efferents जाते हैं, कहाँ जाएंगे इसके efferents? इसके efferents deep cerebellar nuclei के अंदर जाएंगे, के पास जाएंगे उन्हें command देने। So this is the only nucleus which is going to give the efferents from the cerebellar cortex, ठीक है। Purkinje cell, अभी एक और चीज बताऊंगी, पहले Purkinje cell में इतना नोट करें। फिर हमने 2 और सेल्स का नाम लिया, स्टीलेट सेल्स एंड द बास्केट सेल्स। सो स्टीलेट सेल्स, एज द नेम सजेस्ट, दीज आर स्टार लाइक सेल्स। तो यहाँ मैं बना रही हूँ स्टीलेट सेल्स, क्योंकि स्टार्स हमें पता है ऊपर ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सो दीज आर प्रेजेंट बहुत अपर पोजिशन पे होते हैं, ठीक है। एंड मैंने एक और सेल्स का नाम लिया बास्केट सेल्स। अब ये इजी करने के लिए याद कर लो, बास्केट सेल्स और स्टीलेट सेल्स का जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। सो ये फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन करवाते हैं। मैं एक टर्म यहां लिख रही हूँ, फिजियो में आती है, फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। ये होता क्या है अभी सब देखेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। फिर 2 और सेल्स का मैंने नाम लिया था, दोनों ही जी से शुरू होते हैं, ग्रैन्युलर सेल्स, ग्रैन्यूल सेल्स एंड दी गोल्गी सेल्स। तो दोनों जी वाले सेल्स जी वाली लेयर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो एक हो गया गोल्गी सेल और एक ग्रैन्यूल सेल। सो ये ग्रैन्यूल सेल है, और ग्रैन्यूल सेल ऐसे गया और ऐसे, और एक हो गया गोल्जी सेल। यहाँ लिख लो, दिस इज ग्रैन्यूल सेल, प्लीज अपने आप लेबल करो, मैं भी कर दूंगी। और ये हो गया, यहाँ पर हो गया गोल्जी सेल। और यहाँ पर लिख लो फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन। अब सब समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, नोट, ऑल द सेरिबेलर कॉर्टेक्स के जो न्यूक्लियस जितने भी हैं, ऑल आर इनहिबिटरी एक्सेप्ट granule cells. So remember that all are inhibitory except granule cells. पिंक वाला granule था, granule cell is the only excitatory, बाकी सारे क्या है, inhibitory. Even Purkinje cell that is inhibitory, ठीक है। अब पहले फीडबैक इनहिबिशन का मतलब समझाती हूँ। अभी हम देखेंगे आगे मॉसी एंड क्लाइंबिंग फाइबर्स। क्लाइंबिंग फाइबर्स आर दोस फाइबर्स, मैं अभी आगे डिटेल में समझाऊंगी, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मॉसी फाइबर्स, क्लाइंबिंग फाइबर्स वो फाइबर्स हैं जो कि इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से आ रहे हैं, और उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे फाइबर्स दीज आर द मॉसी फाइबर्स, ठीक है। तो क्लाइंबिंग फाइबर्स जो है वो तो सीधा क्लाइंब करके ऊपर पहुंच जाएंगे पुर्किंजी सेल के पास, लेकिन जो मॉसी फाइबर्स वो ग्रैन्यूल सेल्स को आएंगे, स्टिमुलेट करेंगे, और ग्रैन्यूल सेल्स स्टिमुलेटरी आउटपुट लेके जाएगा, और साथ साथ किसे स्टिमुलेट कर देगा, पुर्किंजी सेल्स को स्टिमुलेट कर देगा। पुर्किंजी सेल्स क्या करेंगे, फिर नीचे जाएंगे और अपना आउटपुट देंगे डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को इनहिबिट करने के लिए, ताकि एक्सेसिव अनवांटेड मूवमेंट्स ना हो, ठीक है, ओवरऑल कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये साथ साथ स्टिमुलेट किसे करेगा, ग्रैन्यूल सेल्स को, और ग्रैन्यूल सेल्स गोल्गी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, और गोल्गी सेल्स ग्रैन्यूल सेल्स को इनहिबिट करेंगे। तो इसे कहेंगे फीडबैक इनहिबिशन। देख रहे हैं, ये इसे स्टिमुलेट कर रहा है, लेकिन इन रिटर्न ग्रैन्यूल सेल गोल्गी को स्टिमुलेट कर रहा है, इन रिटर्न गोल्गी सेल ग्रैन्यूल सेल को इनहिबिट कर रहा है। कहते हैं फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन को। तो फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन में क्या है, ग्रैन्यूल सेल्स जाएंगे और किसको स्टिमुलेट करेंगे, बास्केट सेल्स। दिस वाज आवर बास्केट सेल। बास्केट सेल को ग्रैन्यूल सेल ने क्या किया, स्टिमुलेट किया, ठीक है। लेकिन बास्केट सेल पुर्किंजे सेल को इनहिबिट करेगा, समझ रहे हो।
ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है, लेकिन ये दूसरे को नेक्स्ट वाले जो सीक्वेंस में है उसे इनहिबिट कर रहा है. सो ए इज स्टिमुलेटिंग बी but B is inhibiting C. This sort of inhibition is called feed forward inhibition, which is exhibited by the basket cell and even the stellate cells. ये इंपॉर्टेंट था, फिजियोलॉजी में पूछते हैं वाइवा के टाइम पे बहुत ज्यादा. ठीक है, अब हमने बेसिक समझ लिया. ऑल्सो रिमेंबर दैट सेरिबेलम इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब आते हैं डीप सेरिबेलर न्यूक्लियस पे. फिर जब हम एफरेंट्स पढ़ेंगे तो और क्लैरिफाई हो जाएगा. सो अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं डीप न्यूक्लियाई के अंदर. हम जा रहे हैं डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई. Now deep cerebellar nuclei के अंदर again I am having a mnemonic which is don't eat greasy food. Don't eat greasy food. D stands for the dentate nucleus. अभी इससे बहुत इजी हो जाएगा याद करना भी हर चीज. D stands for the dentate nucleus. E stands for the emboliform nucleus. G stands for the globose nucleus, and F stands for the vestigial nucleus. अब ये मैंने ऑर्डर एक रीजन के लिए बनाया है, बिकॉज द डेंटेट न्यूक्लियस दैट इज लेटरल मोस्ट, यहां से लेटरल टू मीडियल. So medial most nucleus is the vestigial nucleus, lateral most nucleus is the dentate nucleus. Now also remember that the emboliform and the globose together, these are called nucleus interpositus. They are called nucleus interpositus. They're called the nucleus interpositus. Okay, this is really important. Questions पूछते भी हैं. अब एक और चीज नोट करो, dentate nucleus is the nucleus for neocerebellum. अभी हमने देखा था posterior lobe excluding pyramid and uvula. तो dentate nucleus, this is the nucleus of neocerebellum. This is nucleus of neocerebellum. और याद होगा अगर किसी ने, आपने मेरी बेसल गैंग्लिया की वीडियो देखी है, वहां पे मैंने मेंशन किया था कि एक कंपैरेटर फंक्शन ऑफ सेरिबेलम में ये जो पाथवे होता है इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें मेन जो फंक्शन प्ले करता है वो डेंटेट न्यूक्लियस प्ले करता है. वो मैं वीडियो पार्ट 2 में, इसी वीडियो पार्ट 2 वीडियो में वो मैं पूरा बताऊंगी. बट इफ यू हैव सीन दैट वीडियो एंड इफ यू हैव नॉट इवन सीन दैट वीडियो, प्लीज गो एंड सी दैट वीडियो, दैट ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट वीडियो. तो डेंटेट न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियस फॉर द नियोसेरिबेलम. ठीक है, सो इनका अरेंजमेंट भी समझ आ गया हमें, कौन सा मीडियल है कौन सा लैटरल है, यही पूछते हैं. नाउ दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो. पार्ट 2 ऑफ द वीडियो हम एफरेंट्स और फाइनली इफरेंट्स देखेंगे, जिसके अंदर सब इंक्लूडेड आ जाएगा. मॉजी फाइबर, क्लाइंबिंग फाइबर, सब उसके अंदर इंक्लूडेड होगा. सो थैंक यू गाइज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, or if you like this video, please like it, share also among your friends, and please subscribe to my channel, and iska part 2 जरूर देखना. Thank you.